السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مقدر رضا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گلشانوالا میں الیکٹرانک ویب چینل ایسوسی ایشن کے پہلے باقاعدہ اجلاس کا انعقاد پریس کلب میں کیا گیا۔ کہ جس میں 9 منتخب عہدیداران سمیت صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ پھر آپ سب دوستوں کی محبت کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی محبت اتنی عزت دی۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ میرے تمام دوست زندہ باد، الیکٹرانک ویب ایسوسی ایشن چینل زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کے جاننے پہچاننے بزرگ ہستی اور شخصیت جناب عشرت الماس چودھری صاحب سے، چیف ایڈیٹر قانونی بیان، کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک لمبا عرصہ اپنی زندگی کا انہوں نے اس فیلڈ کو دیا، وہ تب سے اب تک ان چیزوں کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اور آج کے ہمارے اس اجلاس کو کس حد تک کامیابی سے ہمکنار سمجھتے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں کی بھرپور تعریف جناب عشرت الماس چودھری۔ وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کے فنکشن میں اس لیے نہیں بلائے کہ یہ ورکوں کا کنونشن ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے سجایا ہے۔ 4 دنوں 5 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایم پی اے ایم ایل اے گجرات کی انتظامیہ آپ کو ہاتھ ڈالے گی، وہ بھی اپنے سارا انتظام کر دیا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ورکر جو ہے نا آگے آئے، جو ورکروں کا گلہ ہے کہ ہمیں نہ تو پریس کلب میں جگہ ملتی ہے نہ ہمیں آگے آنے کا موقع ملتا ہے، یہ ورکروں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ورکر آگے آئے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ جو بغوڑے ہیں نا، یہ بغوڑے یہ 2 دن کی اب بات ہے، ان کی داستانوں سے ختم کر کے دوں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ میں آج بھی انہوں نے روکا کہ پریس کلب میں تالا لگایا جائے، انہیں پریس کلب میں آنے نہ دیا جائے۔ میں پریس کلب انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، وہ ان کی چال میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروفیسر صحافی ہم انہیں نہیں روک سکتے، یہ صحافیوں کا گھر ہے، ہم آج ادھر موجود ہیں۔ میں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اسی طرح اپنا اتحاد قائم رکھیں، آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ انتظامیہ آپ کو مانے گی، انتظامیہ یہاں پر آئے گی، آپ کو مبارکباد دے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ عشرت صاحب بڑے مدلل انداز میں صرف مختصر الفاظ میں انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ ان کی داستان بھی نہ ہوگی، داستانوں میں خوبصورت فکرہ ہے۔ پیچھے سے ساتھی ذرا 2 منٹ کے لیے خاموش رہیں۔ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا CEO پہچان نیوز چینل سلطان صاحب سے کہ وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ جناب آپ سب دوستوں کی بھرپور تالیوں میں عطر سلطان صاحب۔ پیارے دوستوں اور میرے تمام
वर्कर सहाफ़ी साथियों, हज़रत सुल्तान की तरफ से आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद आपको खराज तहसीन कि आपने जनाब इशरत उल्माल, जनाब डॉक्टर अब्दुल कदूस, जनाब शबीर शाह और दीगर अकादरीन की क़ियादत में प्रेस क्लब में उजारादारी करने वाले ग्रुप को ये बता दिया है कि ये किसी के बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है। जो लोग पिछले 20-20 साल से फील्ड वर्किंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पर कोई शनाख्त नहीं, उनकी यहाँ पर कोई पहचान नहीं, लेकिन जो लोग महज इन्वेस्टमेंट के नाम पर ब्यूरो चीफी लेकर, जो ब्यूरो चीफ नहीं बल्कि ब्यूरो चीफ है, वो यहाँ पर इसको, इस इदारे को अपने बाप का घर, अपनी खाला का बाड़ा समझते हैं। उनको मेरी पूरे जितनी भी काबीना है और जितने यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, उनका एक ही पैगाम है कि आज के बाद इस प्रेस क्लब के वारिस हम हैं और हम ही यहाँ पर बैठेंगे और इंशाअल्लाह वर्कर साथियों की जदोजहद कामयाब होगी। और जैसे कि कदूर साहब ने फरमाया कि हमारा खून भी हाजिर है, तो मैं भी इनके शाना बिशाना खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह मेरी जो चैनल है पहचान टीवी, इंशाअल्लाह तमाम सहाफ़ी दोस्तों की पहचान बनेगा। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप साबित कदम रखिए, इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम अपने हकूक़ इस इदारे की मेंबरशिप ज़रूर हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो सैयद शबीर हुसैन शाह साहब की रजीम है, आज वो कामयाब हो गई। यकीन करें आज तक सोशल मीडिया के वेब चैनल के जितने भी मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको कभी इस तरह की इज्जत अज़ावा की और कोई मेल नहीं दी गई। मैं मशकूर हूँ अपने जितनी रजीम है, इन्होंने भरपूर एक कामयाब इजलास के मुताबिक आज कामयाब हुई है। यकीन करें दिल की मैं विल इंटरेस्ट हूँ इस रजीम पे, जिन्होंने हालांकि ये जो हक था ये प्रेस क्लब के ऊपर जो इमरान हमारे बैठे हुए हैं उनका था सोचना वर्कर साथियों के बारे में। वर्करों का नारा सभी लगाते हैं, असल हकीकत में ये होता है रजीम, ये होती है इस्ताद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अहमद मुखर साहब खबरें ग्रुप से, उनको भी हम 2 मिनट के लिए सुनना चाहेंगे, उनके ख्यालात का इज़हार करते हैं। आप सब दोस्तों की भरपूर तालियों में आमिर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ही तो हर दौर में खुर्शीद तलाशे, हमने ही तो हर दौर में खुर्शीद तलाशे, उजलाई हुई सुबह की मऊन किरण से तकदीर बदलने पे जो आ जाएं कभी हम, तकदीर बदलने पे जो आ जाएं कभी हम, तकदीर बदल देते हैं माथे की शिकन से। तमाम दोस्तों साथियों का शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि तमाम अकाबरीन सहाफ़त और वर्कर साथियों, तारीख़ गवाह है कि हम जिस तरफ चले हवाओं का रुख बदल गया। मैं इसी शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आज अखां बारे शानू कि कब्रां विचों बोल, आज अखां बारे शानू कि कब्रां विचों बोल, ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सी तीर पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, अज लखा तियां रोंदियां तेन वाले शानू कहन, उठ दर्द मंदा ले कर दिया ते देख अपनी पंजाब बेले नशा पियां ते लहू दी पड़ी पंजाब। दोस्तों मैं आपको इस प्रोग्राम से साथ ही इजाज़त चाहता हूँ कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, हो सके तो अभी से इनकलाब पैदा कर। हमारे ना सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज दिल खुश हो गया, इतनी रौनक गुजरांवाला प्रेस क्लब में बहुत कम देखने को मिली है। एक दौर था प्रिंट मीडिया का, उसके बाद दौर आया टीवी चैनल का, आज दौर वेब टीवी चैनल का, सोशल मीडिया का है जो आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप मुस्तकबिल के मामार हैं। असल हक आपका प्रेस क्लब में है। आप मेहनती लोग हैं, आप जो दिखा सकते हैं वो ना तो प्रिंट मीडिया दिखा सकता है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा सकता है। हम दिलो जान से आपके साथ हैं। हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे आपके साथ कंधा से कंधे मिलाकर
प्रेस क्लब में आपकी मेंबरशिप को यकीनी बनाएंगे। दोस्तों की बहुत एफर्ट है, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्की दे। सैयद शबीर हुसैन शाह साहब के जितना मुबारक है, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत कोशिशें करेंगे और अपना काफ़िले को बढ़ाएंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। दूसरों पर तनकीद करने का वक्त नहीं है, अपने फर्क को बढ़ाएं, अपना काम करें। आप सच्चे वर्कर हैं, इंशाल्लाह प्रेस क्लब आपका है। मैं फिर आखिर में एक बार फिर आपको यकीन दिलाता हूँ, हम जानी माली आपके साथ हैं। का जाना पहचाना वो चेहरा आप सब दोस्तों की भरपूर तालियों में जनाब शाह फरूक मलिक साहब। दोस्तों को वेलकम करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ लाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हाफ़िज़ सिकंदर आज़म साहब का, सैयद शबीर शाह साहब का, अहमद खान नियाज़ी साहब का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये गुलदस्ता सजाया और सहाफ़ी वर्कर सहाफ़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। जबकि इससे पहले गुजरांवाला में ऐसी कोई ऐसी तंजीम काम नहीं कर रही थी कि वेब चैनल को चैनल ही नहीं समझा जाता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब की क़यादत में, सैयद शबीर शाह की क़यादत में, अहमद खान नियाज़ी की क़यादत में, कदूस मुग़ल की क़यादत में, बाकी आप सब दोस्तों के तामल के साथ आज एक चैनल का एसोसिएशन का एक इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह के हुक्म से ये एक ऐसा पौधा लगेगा कि तमाम गुजरांवाला के साथियों के लिए एक मिसाली पौधा होगा। बाकी मेरी सैयद शबीर शाह साहब से दरख्वास्त है, अहमद खान नियाज़ी साहब से और सब दोस्तों से कि ये वर्कर साथियों को साथ लेकर चले और इनके दस्ते बाजू बने। और ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब दोस्तों को साथ लेके चलेंगे और आपको बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं इस प्रोग्राम को मुख्तर करते हुए समेटते हुए मैं उनके कुछ अहदेदारान को दावत कराम दूँगा। सबसे पहले मैं नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन असमतुल्लाह राजपूत साहब को उनको गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अब सब दोस्तों की भरपूर तालियों में असमतुल्लाह राजपूत। मैं अपने तमाम सीनियर भाइयों का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने आज इस खूबसूरत महफिल का इनकार किया है। और गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हम प्रेस क्लब की सहाफ़त पर नज़र रखे हुए थे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ दोस्तों से मुख्तलिफ ग्रुपों के बारे से देख रहे थे कि सिलेक्शन का दौर हो रहा था। आज बड़ी खुशी हुई है कि वर्कर साथियों को प्रेस क्लब के अंदर देखकर, और मैं समझता हूँ इसमें अपने भाई कदूस मुग़ल साहब को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ, सैयद शबीर शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनको भाइयों ने इज्जत से नवाजा है। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि वर्कर सहाफ़ियों को इज्जत दें, क्योंकि वर्कर सहाफ़ियों को यूनियनों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफार्म से वर्कर सहाफ़ियों को ज़रूर इज्जत मिलेगी। और जैसा कि भाइयों ने जिक्र किया है वेब चैनल का, इसमें तो दो राय है ही नहीं कि सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को नाकूद कर दिया है। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रसाई नहीं थी, सोशल मीडिया ने वहाँ पर भी काम करके अपने आप को मनवाया है। और ये दौर सोशल मीडिया का है, वेब चैनल का है।
तो मैं फिर भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो वर्कर साथियों का ख्याल रखें और उन्हें इज्जत दें। बाकी असदुल्ला साहब ने कहा कि दौर सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया की गिरफ्त है वो दूसरे मीडिया में नहीं है, और ये सबसे अहसन कदम है कि इलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन का इनाकाद भी हुआ है। जितनी पावर इसमें मैं नहीं समझता कि किसी दूसरे मीडिया में है। और सबसे बड़ी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि जब किसी के साथ मिल बैठ के चले तो बिल्कुल नफरत अंगेज किसी के बारे में अल्फाज नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड में मैं ना अहल हूँ तो उस सीट के लिए मैं अपना इंतखाब करूँ। ये थोड़ा सा हमारे साथी भाइयों में है कि जो इस काबिल हो ना उसे वो सीट देनी चाहिए। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब सहाफ़ियों का है, सहाफ़ियों का ये घर है, इसके अलावा कोई सोच भी नहीं सकते कहीं और जा सकते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सब साथियों को, भाइयों को, जिन्होंने ये इंतखाब किया, इनाकाद किया। और कदूस नूर साहब शाह जी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी काबिल से आज हम सबको इधर इकट्ठा किया और मुझे इज्जत से नवाजा। आप सबका बहुत सब भाइयों का, सब बहनों का, जो भी यहाँ पे आए हैं इस गुलदस्ते की शक्ल में, सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। बेहद मशकूर हूँ इन सब भाइयों का। नज़र जिसकी खुदा पे हो, राधे जिसके पुख्ता हों, वो तला तम और खेलों से घबराया नहीं करते। इंशाल्लाह बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, दिन रात उनके साथ हूँ। जब भी मेरी कहीं पर ज़रूरत पड़ती है मैं इंशाल्लाह इस गुलदस्ते के साथ हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं जी ये वेब चैनल है, इसकी क्या वैल्यू है। मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने बारहा बार कहा कि सोशल मीडिया सबसे ऊपर है। नेशनल जो टीवी है, जैसे जितने भी नेशनल टीवी है वो अपनी जो खबरियत है वो 70% सोशल मीडिया से इकट्ठी करते हैं और वो बाद में कहते हैं कि सोशल मीडिया कुछ नहीं है। बारहा बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये गुलदस्ता हमने सबने मिल बांट कर इसको आगे बढ़ाना है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। हम सब ने अपनी मदद आप करनी है और इस गुलदस्ते को खूबसूरत बना के वर्कर सहाफ़ियों की इज्जत को प्रेफर करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और बोझ। आज के हमारे इस इजलास की, इस महफिल की जान शान आन बान हमारे सदर मेरी मुराद जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, आप सब दोस्त जिनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, मैं गुजारिश करूँगा आप सब दोस्तों को की भरपूर तालियाँ बताएंगी कि वो किस लेवल के सदर हैं और हमें उनको सदर बनाकर आज कितनी खुशी हो रही है। तो सब दोस्तों से गुजारिश है, द बिग हैंड सैयद शबीर हुसैन शाह साहब। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मैं मशकूर हूँ सबसे पहले उन दोस्तों यहाँ पे तशरीफ़ ला के, एक तो मेरा मान बढ़ाया, दूसरा वर्कर सहाफ़ी होने का सबूत पेश किया और बताया जो नॉन प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं उनको बताया कि प्रोफेशनल सहाफ़ियों का इजलास किस तरह होता है। दोस्तों हमारी सहाफ़त जो है ये शोबा पैगम्बरी है। हम जिस काम को, जिस काज को लेके यहाँ पे चल रहे हैं, ये हमारे अम्बिया सलातो व सलाम ने किया है। सहीफ़े अम्बिया किराम पे उतरते थे। सहाफ़ी का मतलब खबर देने वाला है और नबी पैगम्बरों का और औलिया किराम का भी सेवा खबर देना था। हम आज उनके मिशन को लेकर चले हैं। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देग पकाने वाले ने देग पका दी है, अब उसको लेने वाले में डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे हासिल कर रहा है। जिसका घर करीब था या जिसके पास कोई बर्तन था उसने बर्तन आगे किया, देने वाले ने उसमें डाल दिया।
जिसके पास बर्तन नहीं था, कोई कपड़ा था, उसने कपड़ा आगे किया, उसने डाल दिया। जिसके पास कपड़ा नहीं था, चोली पहनाई, उसने उसमें डाल दिया। किसी ने आगे हाथ की, उसने हाथ में डाल दिया। किसी ने वहां से गंदा शापर उठाया, उसको झाड़ा, उसमें डलवा लिया। डालने वाले ने डाल दिया। सहाफत अपनी जगह पे जो पेशा वराना सहाफ़ी हैं, उनको अच्छे तरीके से सरंजाम दे रहे हैं और उसमें से अपना रिज़्क भी खाते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। बहरहाल ये बहस बहुत लंबी है, उस साइड पे मैं जाना नहीं चाहता। मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रिंट मीडिया, सबसे पहले अखबारात होते थे, वो पेश किए जाते थे। सारी रात उनकी किताबत होती थी, फिर वो पेश होना, सारी रात के बाद जागना और लाहौर से जाके प्रिंट करवा के लेके आना। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतना मायूब समझा जाता था जैसे पता नहीं ये कोई और दुनिया से किसी से आ गई है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आते ही गई और जैसे ही आई वैसे ही छा गई। इसके बाद आज सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है। आज जिस तरह के मेरे भाई ने, अहमद खान नियाज़ी ने निशानदेही की है कि 70% जो खबरें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, वो वहाँ से लेके खबरें चलाता है। आपने भी देखा होगा, कई खबरें ऐसे आपने वायरल की होगी और वहाँ से उन्होंने लेके वो चला दी हैं। आज इस आपके जो सोशल मीडिया की अहमियत है, उसकी एक खबर पे एक्शन हो जाता है। उसको एक ही सेकंड में जब आप वायरल करते हैं तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अरबों लोग उसको देखते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अपने वेब चैनल बनाने वाले की भी पहचान बन गया है और आपको आज़ादी सहाफ़त का एक सहारा भी मिल गया है। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको बड़े चैनलों में मौके नहीं मिलते, बड़े अखबारों में मौके नहीं मिलते, उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मेरी इल्तिजा है कि वो अपनी भरपूर मेहनत से, लगन से उस पर काम करें, अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें। इंशाअल्लाह आज भी सोशल मीडिया का दौर है और आने वाला वक्त भी सोशल मीडिया का दौर है। रही बात अपने हकूक़ की, आज तक हमने क्या किया, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं करूँगा। हमें वर्कर सहाफ़ियों को हर अखबार में इस्तेमाल किया गया। जब भी किसी ने कॉल की, किसी को जरूरत पड़ी है तो कॉल कर दें, नहीं तो दोस्त मुगल साहब को कॉल कर दें, 100 बंदा लेके आ जाएगा। शाहिद मदद फारूक साहब को कॉल कर दें, 100 बंदा लेके आ जाएगा। यार हमारे लिए किया क्या है आप लोगों ने? आप लोगों ने कौन सी ऐसी स्कीम है जहां से आपने बेनिफिट नहीं लिया? कौन सी आपने आज तक कोई गुजरांवाला की ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसमें आप बेनिफिशरी नहीं है? यार खुदा के लिए आप लोगों ने सिर्फ वर्कर सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके किसी भी तरह फेंक दिया। आज हम इस प्लेटफार्म से, इस सोशल मीडिया के तवज्जुह से हम अहद करते हैं और मैं मशकूर हूँ आप दोस्तों का जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी है। इंशाअल्लाह आपके हकूक़ की बात हर फोरम पे होगी। जिस शख्स को, जिस मेरे भाई वर्कर सहाफ़ी को प्रेस क्लब में मेंबरशिप नहीं है, वो मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी मेंबरशिप होगी, वो कहेगा उसमें उसकी मेंबरशिप होगी और इंशाअल्लाह हर कोटे में हमारा हिस्सा होगा। हमने आज ये अहद किया है कि लड़ाई लड़नी है तो अपने वर्कर सहाफ़ियों की लड़नी है। वफामत ना सिखा मुझे, वफामत ना सिखा जबरे रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे हर बला से मुझे। मैंने आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और मेरे पे कभी भी आप सुन लेंगे कि मैंने कहीं से 1 रुपए का फ़ायदा लिया तो मेरे पे वो हराम है और आप लोगों पे हलाल। इंशाअल्लाह जब भी बात होगी आपके हकूक़ की बात होगी, जब भी बात होगी वर्कर सहाफ़ियों की बात होगी। मैं आखिर में फिर आने वाले तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ से तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। और मैं ख़ुसूसी तौर पर इजाज़ मुग़ल साहब जो किला दीदार सिंह से तशरीफ़ लाए हैं, उनका नहायत ही एहतराम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ ला के उन्होंने हमें जो इज़्ज़त बख्शी है।
अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। खाने का इंतज़ाम है, किसी दोस्त ने जाना नहीं है, खाना खा के इंशाअल्लाह बफज़ल ताला उसके बाद हमारा एक प्लान है कि हम अपने जितने वर्कर सहाफ़ी दोस्त हैं गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे एक राउंड करेंगे और हम इंतज़ामिया को भी और अपने सहाफ़ी भाइयों को भी बताएंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये डिजिटल वेब चैनल एसोसिएशन मार के वजूद में आई है और ये अपना हकूक़ लेके रहेगी। अल्लाह अली जी, अली जी, भाई थोड़ी मुगल साहब इस तरह बहार साहब दोबारा बहार साहब फुल पाना दोबारा आ रहे मैं सब फॉलो किया पहले